नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशाचारिणे नमस्ते
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। Hare Krishna. Thank you, Anita Mataji, Amit Prabhu, and all the family. Family, we praise together, chants together, stays together. So wonderful. Thank you so much. So, Sanan Prabhu will join in few minutes, and so we'll just we have to start our verse 6 today. So these, when we read Guru Ashtakam, so these two verses, what we did last, the fifth one and the sixth one, they are a little esoteric in nature.
and Prabhuji explained so nicely last time. So till the time Prabhuji comes, so then we can ask, who remembers what did we hear last time? Yes, Meenakshi Mataji, बताइए, what did we hear last time? Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, last class I didn't attend properly. I just half of the attended. Generally, I just remember what I remember is that Prabhuji was telling about the that part जिसमें रूप नाम की बात होती है कि प्रभुजी बता रहे थे कि generally the order was नाम रूप गुण लीला. So but जब हम इसमें इस verse में बात करते हैं, then we just talking about that that Leela is coming first and then Gun and other things are coming. So Prabhuji was explaining that the spiritual master, that for the Leela is the top. जिस हम लोग पहले नाम को पहले जानते हैं, जब हम नाम की महिमा के बाद फिर रूप को and then गुण को and then लीला, इस तरीके से प्रभुजी ने बताया था. But जो spiritual master है, he always sees from a Leela and then he comes down to the नाम, because the position of spiritual master is very high. This what I remember from the last class. Thank you, Mataji. मुझे भी यही याद. But I also remember. Yes, Shivani Mataji, you raised hand. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Done. Yes, Prabhuji, one thing which Mataji shared, and the other thing Prabhuji said that it's Shri Radhika Madhaviyor Apara. Shri Radhika Madhaviyor Apara Madhura Leela Gunarup Namna. So, spiritual master always embrace and always every moment he's hankering for these pastimes. So he wants he's attached to these pastimes. He's enjoying these pastimes at every moment. Yes. Yes. Apar Leela he is experiencing, he's relishing that. Yes. Relishing, yes. Thank you. Or anybody else want to share what did we heard last time about this wonderful, verse 5? Yeah, Prabhuji also talked about Madhava as a word, that what it means. So it can mean Lakshmi's consort, as well as it can also mean Madhur Bhagwan. Then also he talked about Anant, that his Roop, his Naam, his Gun, his Leelas, everything is Anant. They are, innumerous. Also, he talked about what Leela God performed at what times. Yes. Thank you, Mataji. Yes. Or anybody else want to share what we heard last time? और हमने एक्सरसाइज भी की थी, कितने हमें नाम याद हैं, कितने हमें गुण याद है. Limited names. हाँ, और हमारी अनलिमिटेड 5 मिनट में ही खत्म हो गई थी. नाम गुण लीला सब खत्म हो गए थे. So maybe we can go back and not go back, but see how many of names Radha Krishna names we remember, which are related. I mean, all his names are related with some pastime. Oh, Prabhuji has come. Okay. Hare Krishna Prabhuji. Dandavat Pranam. All grace to Prabhupada. So His Grace Rasaran Prabhu is here. So thank you, Prabhuji. We were just revising last session. So we will loudly chant one Hare Krishna Mahamantra to welcome His Grace Rasaran Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Rasaran Prabhu ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Yes, Prabhuji. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशकारिणे. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हरे कृष्णा। तो आज हम गुरुवाष्टकम के 6 नंबर श्लोक चर्चा करेंगे। निकुंज जीवन रति केलि सिद्धे या जालिभीर युक्तिरपेक्षणीय तत्राति दाक्षान् अति वल्लभस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। तो लास्ट वर्स कोई पिछले श्लोक में हम लोग ये चर्चा किया था कि किस प्रकार आध्यात्मिक गुरु राधा कृष्ण की जो राधा माधव ये माधुर्य लीला गुण रूप नाम हमेशा स्मरण करते हैं, प्रति क्षण आस्वादन, हमेशा आस्वादन करते रहते हैं आध्यात्मिक गुरु। और उसके लिए आध्यात्मिक गुरु की एक प्रकार बोलते हैं लोलुपत, लालच भी है, इसके प्रति एक्सट्रीम रुचि है, और ऐसे आध्यात्मिक गुरु की चरण वंदना करते हैं। नेक्स्ट श्लोक में मतलब निकुंज यून रति केलि सिद्धे, इसमें आध्यात्मिक गुरु किस प्रकार, पिछले श्लोक में हम लोग पढ़ा था कि आध्यात्मिक गुरु राधा कृष्ण की गुण रूप लीला इत्यादि स्मरण करते हैं और उसमें मग्न रहते हैं। इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि किस प्रकार आध्यात्मिक गुरु एक्सपर्टली सेवा करते हैं राधा कृष्ण की। तो उसमें स्मरण के बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार लीला नाम रूप गुण लीला स्मरण करते हैं और इसमें किस प्रकार सेवा करते हैं। तो निकुंज यूनो रति केलि सिद्धे या जालिभीर युक्तिर अपेक्षणीय। निकुंज यूनो, निकुंज का मतलब है कुंज, और यूनो का मतलब है युगल। यूनो मतलब बोथ, दोनों। तो निकुंज यूनो, निकुंज मतलब कुंज में जो राधा कृष्ण मतलब, तो राधा कृष्ण कुंज में रति लाभिंग केली फर्स्ट टाइम। तो कुंज में राधा कृष्ण जो लीला करते हैं, और वो लीला में वो परफेक्शन देने के लिए राधा कृष्ण कुंज में जो लीला करते हैं, उस लीला को सफल करने के लिए याजा अलिभीर युक्ति अपेक्षणीय। अलिभी मतलब गोपी, अली का और एक मीनिंग है मधुमक्खी भी। तेज वृंदावन की जो गोपियां हैं, ये सभी प्रकार के अरेंजमेंट्स करते हैं जो राधा कृष्ण के डिजायरेबल, ताकि राधा कृष्ण कुंज में लीला कर सके। और उसमें आध्यात्मिक गुरु जो है तत्र अति दक्ष, आध्यात्मिक गुरु बहुत ही एक्सपर्ट है इस चीज में। जिस प्रकार वृंदावन में गोपियां राधा कृष्ण की सेवा करती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु के उसमें अति दक्ष, बहुत ही एक्सपर्ट है, निपुण है उस प्रकार राधा कृष्ण की सेवा में। और साथ में अति वल्लभ है, राधा कृष्ण के बहुत ही प्रिय है। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो मैं इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम करता हूँ। तो सबसे पहले निकुंज यजुनो, निकुंज मतलब कुंज। कुंज जैसे हम लोग रोज गाते हैं राधा माधव कुंज बिहारी। राधा कृष्ण मोस्ट ऑफ द लीला कहाँ करते हैं? कुंज में करते हैं। कुंज इस प्रकार है कि वन में जो लताएं हैं और पेड़ पौधा के बीच में नेचुरली एक घर जैसे बन जाते हैं, और उसको बाद में और थोड़ा गोपियां जो कि ये सब लोग डेकोरेशन करती थी ताकि राधा कृष्ण आके वहां पर लीला करें। गोपी जन वल्लभ गिरी वरधारी। और निकुंज यूनो, यूनो मतलब राधा एंड कृष्ण। तो हमारे जो परंपरा, इसमें हम सिर्फ कृष्ण के वर्शिप नहीं करते, हम राधा कृष्ण दोनों के ही वर्शिपिंग करते हैं। ये अलग अलग संप्रदाय है जिसमें सिर्फ कृष्ण की वर्शिपिंग करते हैं, लेकिन हमारे परंपरा में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, हम राधा कृष्ण दोनों की वर्शिपिंग करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया माधुर्य रस, ये एक्चुअली जो जुगल वर्शिप राधा कृष्ण की, ये माधवेंद्रपुरी के द्वारा ये शुरुआत हुई। उससे पहले कोई राधा कृष्ण की एक साथ में सेवा
नहीं करते थे, बहुत कम लोग जानते थे, ज्यादातर कृष्ण। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है, हमें सबसे टॉप मोस्ट, जयो जयो जलो रसो सर्व रसो सार, सभी रसों में कृष्ण माधुर्य रस, और उस माधुर्य रस में हमें राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि कृष्णा और राधा रानी कभी एक दूसरे से अलग नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन लीला के लिए दोनों अलग अलग शरीर में प्रकट होते हैं। फिर कलयुग में फिर दोनों एक हो जाते हैं, तो इसलिए हम हमेशा राधा कृष्ण के एक साथ में पूजा करते हैं। और ये शक्ति और शक्तिमान प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कृष्ण शक्तिमान, राधा रानी भगवान कृष्ण की लाधिनी शक्ति। तो इसलिए हम सिर्फ कृष्ण का वर्शिपिंग नहीं करते राधा कृष्ण, बल्कि राधा कृष्ण दोनों को भी करते। इसलिए निकुंज यूनो मतलब राधा कृष्ण की रति केली, ये कंजुगल लाभ रति, ये जो रति है ये एक्चुअली बहुत हायर लेवल की बात है, राधा कृष्ण की बहुत उच्च स्तर की बात है। राधा कृष्ण की जो रति कंजुगल लाभ जो है, इवन भौतिक संसार में भी यद्यपि प्रभुपाद बोलते ये प्रेम नहीं है, फिर भी कंजुगल कुछ है, हस्बैंड वाइफ के जो बीच में रिलेशनशिप ये काफी कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तब राधा कृष्ण के बीच में जो लीला है ये तो और कितना कॉन्फिडेंशियल, तो ये जो भक्ति में मैच्योर नहीं है, एडवांस नहीं है, वो समझ नहीं सकते। इसलिए प्रभुपाद जनरली पब्लिकली ये सब कुछ नहीं बताते। इसलिए लिखते हैं रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कवे हम भुजवश्य जुगल पीरिति। जब रूप रघुनाथ, ये रूप सनातन जैसे षड गोस्वामी या उनके जो प्रतिनिधि रूपानुग हैं, उनके अंडर में रह के हम भक्ति करेंगे, तभी राधा कृष्ण के जो प्रेम है इस चीज को हम समझ सकते रति, अदरवाइज ये हमें समझ के परे है। प्रभुपाद बहुत हमेशा बोलते थे ये राधा कृष्ण की जो अफेयर थे ये एक मंडेन जो ऑर्डिनरी लड़का और लड़की के बीच में जो रिलेशनशिप इस प्रकार नहीं है। इसलिए ये बहुत ही मतलब हायर टॉपिक है। जैसे हम देखते वृंदावन में ये गोस्वामी लोग, खास करके सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, बहुत सारे ग्रंथ लिखे राधा कृष्ण के इस प्रकार कंजुगल लव, लविंग अफेयर के ऊपर, और लिखने के बाद उनको समझना है कि ये तो कलयुग उनके लिए संभव ही नहीं समझना, समाधि दे रही है। हम वृंदावन में जब जाएंगे देखेंगे राधा मदन मोहन मंदिर के पीछे है ग्रंथ समाधि, तो ये राधा कृष्ण की जो कंजुगल लाभ है ये वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये गोस्वामी जो थे वृंदावन के, इन लोग के अंडर में जब हम रह के भक्ति करेंगे तभी ये संभव है, खास करके राधा रानी की जो प्रेम है। लेकिन ये टॉप मोस्ट इतना हमें समझ लेना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के साथ जब रामानंद राय की चर्चा हो रहा था उस समय भी चैतन्य महाप्रभु के जो प्रश्न के उत्तर में रामानंद राय ये एस्टेब्लिश करते हैं किस प्रकार गोपियों की जो प्रेम है ये सर्वोच्च है, और उसके ऊपर राधा रानी की प्रेम है। उपदेशामृत में भी ये 10 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी लिखते हैं अलग अलग जो आध्यात्मिक जो व्यक्ति है उनका क्रम है, तो सबसे टॉप मोस्ट में राधा वृंदावन की गोपियां हैं। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट इस चीज को समझना, इसलिए गोस्वामियों के अंडर में इस प्रकार अगर हम उनके पद चिन्ह को फॉलो करेंगे तभी हम समझ पाएंगे राधा कृष्ण की ये रति और केली, इन दोनों चीज। रति मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फास्ट टाइम, जिस प्रकार राधा कुंड में या प्रेम सरोवर में करते थे राधा कृष्ण, इस प्रकार जो लीला है। इसलिए उपदेशामृत में लास्ट में ये सेक्शन आते हैं कि लास्ट श्लोक में ऐसे बताते हैं कि तो ऐसे कौन मूर्ख व्यक्ति जो राधा कुंड में नहीं स्नान करेगा, कि एक बार भी राधा कुंड में स्नान करने से, सिर्फ एक बार डुबकी लगाने से तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो कोई प्रश्न पूछ सकते कि कितने बार तो हम डुबकी लगा रहे फिर भी कृष्ण प्रेम प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, मतलब उसमें एक गारंटी थी रूप गोस्वामी, एक बार कैसे भी वो राधा कुंड में एक बार भी डुबकी लगा लेते तुरंत उठ के देखेगा उनको कृष्ण प्रेम मिल गया। लेकिन क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसमें जो 1 से 10 नंबर श्लोक में जो बताया उसके बाद 11 नंबर श्लोक में ये बताते हैं राधा कुंड में एक बार डुबकी लगाने से तुरंत कृष्ण प्रेम मिल जाते हैं। तो कब मिलेगा, 1 से 10 नंबर श्लोक में जो रूप गोस्वामी बताया वो फॉलो करने के बाद जाके डुबकी लगाएंगे तो तुरंत मिल जाएगा।
इसका मतलब भक्तल बोलते ये गारंटेड है, आप 1 से 10 नंबर जो श्लोक है, ये दोनों 10 श्लोक फॉलो करके उसको डुबकी लगा के देखो, ये रूप गोस्वामी की जिम्मेदारी है, आपको जरूर मिलेगा कृष्ण प्रेम। लेकिन वो 1 नंबर श्लोक में हम लोग फेल हो जाएंगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि रूप रघुनाथ पद होइबे आकुति युगल पीरिति, ये पीरिति या रति, ये जो है हम तभी समझ सकते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि जब ये रूप सनातन उनके चरण में हम कुछ मिनती प्रार्थना करेंगे, तभी इस चीज को हम समझ सकते हैं। और तभी हमें ये समझ में राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरने गोती आर नाही मोर। ये जो विचार है सिर्फ राधा कृष्ण हमारे प्राण स्वरूप है, और ये जीवन, इस जीवन में और मृत्यु के बाद भी राधा कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये रति मतलब क्या है, जो कृष्ण प्रेम की सर्वोच्च सीमा जो है, जो राधारण्य उनके बारे में बताते हैं, ये राधा बिना ते हो क्यों ना, वो कृष्ण डज नॉट बिलोंग टू एनीवन एल्स, ओनली श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए अगर राधा रानी रिकमेंड करती है तभी हम कृष्ण के पास जा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जा सकते। और इसलिए राधा रानी को भी एक प्रकार से ओरिजिनल गुरु तत्व बताते हैं, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक गुरु के बारे में बात कर रहा है। जिस प्रकार गोपियां राधा कृष्ण की ये जो गोपनीय लीला में मदद करते थे, आध्यात्मिक गुरु भी इस प्रकार सेवा करते थे। तो आध्यात्मिक गुरु एक प्रकार, आध्यात्मिक गुरु का अल्टीमेट गोल क्या है, आध्यात्मिक जगत में राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, जो इस श्लोक में दिख रहे हैं, और गोपियों के अंडर में रहकर राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तो गोपाल बोलते जो भक्त हैं, भक्तों सबके अलग अलग इच्छा है। कोई आध्यात्मिक वृंदावन में जाके कोई गोप बालक के असिस्टेंट बनना चाहते हैं, कोई माँ यशोदानंद महाराज के असिस्टेंट बनना चाहते हैं, कोई भगवान के जो सेवक हैं, सेवकों के दास भक्त उनके असिस्टेंट बनना चाहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है, गोपी वर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि हम गोपी वर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, कि हम चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में बताए, हम ना तो ब्राह्मण, ना वैश्य, ना शूद्र। ये चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आते हैं, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्य न शूद्र। ये चैतन्य महाप्रभु में विप्र ब्राह्मण नहीं हूँ, न च नरपतिर ना तो मैं क्षत्रिय या राजा नहीं हूँ, ना ओपी वैश्य मैं एक वैश्य भी नहीं हूँ, और ना तो मैं शूद्र हूँ। ना हम वर्णी न च गृहपतिर, ना ये 4 वर्ण में जो है मैं एक भी नहीं हूँ, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थ, ना यतिर्वा, ना तो मैं सन्यासी। किंतु प्रद्यन निखिल परमानंद पूर्णाभिरादेर, लेकिन मैं अपने आप को गोपी वर्तु पद कमल दास दासानुदास, जो वृंदावन की जो गोपियां हैं, ललिता विशाखा देवी, गोपी वर्तुर उनके चरण कमल के दास दासानुदास, मतलब वृंदावन की जो गोपियां उनके दास के दास के दास हम बनना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली इस श्लोक में भी ये बता रहे हैं कि किस प्रकार या अलीभीर गुरु, आध्यात्मिक गुरु गोपियों जैसे राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। मानस में, इस जगत में जब रहते तो मानस में सेवा करते, आध्यात्मिक जगत में जब चले जाते तब फिजिकली सेवा करते। इस प्रकार ये नरोत्तम दास ठाकुर उसमें लिखते किस प्रकार ये जो बता रहे याजा अलीवीर युक्ति अपेक्षणीय, इस सॉन्ग में आप लोग जानते हैं, राधा कृष्ण प्राणमोर युगल किशोर। तो इसमें एग्जैक्टली जो एक्सपर्ट भक्त है, आध्यात्मिक गुरु जैसे, वो किस प्रकार राधा कृष्ण की सेवा करते हैं या राधा कृष्ण की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, इस श्लोक में बताते हैं। कालीन दिरो फूले के लिए कदम बेरो बोन रतनो बेदीरो ऊपर बसा बधु जान। तो ये किस प्रकार मनोभाव है, कालीन दिरो कूले, कालीन दिरो कूले मीन्स नाउ
यमुना के किनारा में जो कदम वृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन में राधा कृष्ण को हम बिठाएंगे, ये उनकी वासना इच्छा है। और श्याम गोरी अंगे दिवो चंदन निरुगंध, और भगवान कृष्ण का अंग कांति श्याम वर्ण और राधा रानी की गोरी मतलब गोरा, और दोनों के अंग में मैं चंदन लगाऊंगा। चामर धुलावो कवे हेरी मुख चंदन, और ये चंदन उनको सबसे पहले हम सिंहासन में बैठाएंगे, उसके बाद उनके अंग में चंदन लगाएंगे और उसके बाद चामर धुलाएंगे। गाथिया मालतीर माला दीवो दोहार गले, और मालती माला बना के, मालती फूल का माला बना के दोनों के गले में पहनाएंगे। औधरे तुलिए दीवो कर्पूर तांबुले, और उसके बाद हम तांबुल मतलब पान, कर्पूर के साथ पान उनको मुंह में देंगे। तो इस श्लोक में जो बता रहे हैं ये गुरुवाष्टकम के कि जा या अलिभीर युक्त अपेक्षणीय, आध्यात्मिक गुरु जो अलिभी मतलब गोपी जिस प्रकार सेवा करती है उस प्रकार सेवा करते हैं। इसमें वो बता रहे नरोत्तम दास ठाकुर, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, कि ललिता विशाखा आदि ऐसे जितने भगवान कृष्ण के सखियां हैं राधा कृष्ण के, आज्ञायो कोरिवो सेवा चरणारविंद, उनके आज्ञा से, ये काफी इंपॉर्टेंट है, उनकी ललिता विशाखा देवी की आज्ञा से हम भगवान कृष्ण राधा कृष्ण के चरणारविंद सेवा करेंगे, चरण सेवा करेंगे। फाइनली नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास दास। फाइनली मेरा इच्छा ये है कि चैतन्य महाप्रभु की जो दास है उनके दास के दास बनना, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, और इस प्रकार सेवा की इच्छा करते नरोत्तम दास ठाकुर। कृष्ण जो बता रहे हैं कि गोपियों के अंडर में रहकर चैतन्य महाप्रभु गोपी वर्तु पद कमल दास दासानुदास, लेकिन हम इस प्रकार जो नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं हम ये भी बोल सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के दास दासानुदास। तो कलियुग में ये और इजी है, नरोत्तम दास ठाकुर जो बता रहे चैतन्य महाप्रभु के, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, चैतन्य महाप्रभु के जो दास है उनके दास बनना काफी इजी है, क्योंकि राधा कृष्ण और गोपियों के जो तत्व ये काफी ऊपर उच्च विचार है। तो इसमें जो बता रहे हैं कि वृंदावन की जो गोपियां हैं, जा या अलिभीर युक्तिर अपेक्षणीय, अलिभी मतलब गोपी, जो वृंदावन की गोपियां हैं ये व्हाट एवर मतलब क्या है, याजा मतलब जब जिस प्रकार जरूरत है, जब जिस प्रकार जो चीज राधा कृष्ण का अच्छा लगते उनके इच्छा के अनुसार, उनके टेस्ट के अनुसार अरेंजमेंट करके सभी चीज व्यवस्था करते, और वो डिजायरेबल मतलब राधा कृष्ण के जो डिजायर, उनके मन की जो क्या इच्छा है, वो लोग क्या चाहते राधा कृष्ण, ये गोपी लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसके अनुसार जब जिस प्रकार चीज की जरूरत है उस प्रकार से सेवा करते हैं। तो गोपियों का ये एक्सपर्टिज्म, ये जब ये ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि जब जिस प्रकार अरेंजमेंट की जरूरत है उस प्रकार अरेंजमेंट करते भगवान कृष्ण के इच्छा के अनुसार। तो चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार बता रहे कि हमें क्या इच्छा होनी चाहिए, गोपियों के दासों के दास बनना, लेकिन क्या हम इस प्रकार अरेंजमेंट करते राधा कृष्ण की सेवा के लिए, जिस प्रकार इसमें बता रहे कि आध्यात्मिक गुरु जिस प्रकार जो गोपी वृंदावन की गोपी है जिस प्रकार अरेंजमेंट करती है, अगर हम राधा कृष्ण की सेवा की अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं सिंसियरली, तो हम गोपियों के सर्वेंट कैसे बन सकते? नहीं बन सकते, क्योंकि ये वृंदावन की जो गोपियां ये हमेशा ये करते राधा कृष्ण की सेवा की अरेंजमेंट या अलिभीर युक्ति रूपेक्षण में। तो अगर हम इस प्रकार 24 आवर्स राधा कृष्ण की सेवा की अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं अभी इस भौतिक संसार में हमारे कैपेसिटी के अनुसार, तो हम गोपियों के अंडर में जा नहीं सकते। तो वृंदावन की जो गोपियां उनके एक्सक्लूसिव लाभ है भगवान कृष्ण के लिए, जो और किसी का नहीं हो सकता। जैसे चैतन्य चरितामृत में ये लीलाते हैं किस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रति एक्सक्लूसिव प्रेम है ये वृंदावन की जो गोपियां, ये जब रासलीला के समय भगवान कृष्ण रास मंडल छोड़ के चले जाते हैं, रास मंडल छोड़ के चले जाते हैं, और उस समय रास मंडल छोड़ के चले जाते हैं और भगवान कृष्ण विष्णु रूप लेकर ये यमुना के किनारे में बैठे रहते हैं।
और वृंदावन की जो गोपियां भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे थे, और उस समय विष्णु को देखने के बावजूद भी इन लोग विष्णु के प्रति बिल्कुल अट्रैक्शन फील नहीं की। ये स्पेशल लाभ वृंदावन की गोपियां। द्वारका में इस प्रकार भगवान कृष्ण जब एक बार बीमार हो गए थे, उनके बुखार हो गया था, उस समय ये बताए कि एक वैद्य, एक डॉक्टर आते हैं, वो भी एक प्रकार भगवान कृष्ण ही है। बोलते हैं कि भगवान कृष्ण के जो सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनका चरण धूली है, अगर लगाएंगे तो भगवान के सिर पर ठीक हो जाएगी बीमारी। अब सब लोग चर्चा कर रहे, उद्धव इन लोग चर्चा करते करते उनको पता चला कि नारद मुनि सबसे श्रेष्ठ भक्त है। नारद मुनि के पास जाते हैं, नारद मुनि के बोलते आपके चरण धूले चाहिए। नारद बोलते पापी, भगवान, हम भगवान के चरण धूल अपने सिर पर लगाते, हमारा चरण धूली कैसे दे सकते हैं? लेकिन मैंने सुना है जो वृंदावन की गोपियां, ये और भी बहुत बड़े भक्त है, चलो उनके पास चलते हैं। तो नारद मुनि द्वारका के जो सबको लेकर वृंदावन आते हैं, और जो वृंदावन की गोपियां थी उनको बोलते भगवान कृष्ण के तबीयत खराब, उनके बुखार है, उनके चरण धूले चाहिए, आप लोग चरण धूल देंगे? अब वृंदावन गोपी बोलते ले जाओ जितना चरण धूल चाहिए। अब नारद मुनि उल्टा तर्क करते, तुम्हें डर नहीं लगते गोपियां कि भगवान कृष्ण के सर पर ये चरण धूल लगेंगे, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा? बोलते भले ही हम नरक चले जाए, लेकिन भगवान कृष्ण ठीक होना चाहिए। सब जो द्वारका के जो द्वारकावासी या नारद मुनि के समझ में ये जो गोपियां अपने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में। तो इसलिए या अली भी, तो ये विशेष प्रेम है वृंदावन की गोपियां। और इसके लिए ये गोपी गीत में लिखते हैं, पति सुतान नया भ्रातृ बांधवाया ओति बिलंग गयाते, कि कृष्ण के लिए इन लोग सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी, सब कुछ। पति, सूत मतलब पुत्र, अन्य और बाकी रिश्तेदार सबको छोड़ने के लिए तैयार थी भगवान कृष्ण के लिए। इस प्रकार प्रेम करते थे लोग। हमारे गुरु महाराज जी बताते थे, एक वृंदावन की गोपी की शादी हो गई दूसरे गांव में, और शादी होने के बाद उनके ससुराल में ये पता चला, ये राधा जब कृष्ण बलराम को देखते हैं, ये घर के काम में मन नहीं लगते, तो इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए उनके घर की बहू को, गोपी को घर के अंदर बंद करके रखा है। खास करके जब कृष्ण बलराम गोचारण के लिए निकलते, ताकि कैसे भी ये कृष्ण को ना देखे, तो घर में जितने छेद था सब छेद बंद कर दिया, ताकि उस समय कृष्ण बलराम निकलेंगे गाय लेके। लेकिन वो गलती से एक थोड़ा सा छेद छूट गया था, और वो जो गोपी थी जिनकी शादी हो गई, वो उस छेद से कृष्ण को देख लिया, कृष्ण गोचारण में जा रहा है। अब कृष्ण चले गए, उस गांव से गुजर गए। उसके बाद जैसे दरवाजा खुले घर के, तो उस गोपी का बिल्कुल मन नहीं लग रहा है घर के काम में, और वो महाराज भजन से वो कुआं में गए, और उनके गोद में बच्चा था, छोटा बच्चा, बाल्टी के बजाय अपने बच्चे को कुआं में फेंक दिया। मतलब इतने मतलब भगवान कृष्ण को देखने के बाद अपने आप को और रोक नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये है गोपी प्रेम, जो इसमें बता रहे, या अलिभीर युक्तिर अपेक्षणीय। इस प्रकार भगवान कृष्ण से ये प्रेम करते थे। और इसका उदाहरण क्या है, जब उद्धव वृंदावन आते, भगवान कृष्ण, उद्धव सोचते थे कि उद्धव भी श्रेष्ठ भक्त हैं, उनके मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया था, और इसलिए भगवान कृष्ण उनको वृंदावन में भेजते हैं। और वृंदावन में जैसे वृंदावन की गोपियां से मिलते हैं नंद गांव में, तो उनको तब उद्धव को समझ में आता है, एक्चुअली ये गोपियां की जो प्रेम है, इनके सामने हमारा प्रेम तो कुछ नहीं भगवान कृष्ण के लिए। तो जाते जाते वक्त ये उद्धव क्या प्रार्थना करते हैं, आसाम अहो चरण रेणु जुषम अहम श्याम वृंदावने किम ओपी गुल्म लता सुदिनाम। ये भगवान, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं वृंदावन में लता, गुल्म या औषधि या पेड़ पौधा के रूप में मैं जन्म लूं। क्यों? जब ये गोपियां चलेंगी वृंदावन में, तो उनके चरण स्पर्श, चरण धूल मिलेगी। कभी भी उद्धव वाटिका में उद्धव इस प्रकार इस रूप में है, गुल्म के रूप में, लता के रूप में। तो ये है गोपियों की विशेष प्रेम है भगवान कृष्ण। तो इसलिए इसमें बता रहे हैं कि अली भी, जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण की सेवा करते थे, खास करके राधा कृष्ण, अली भी, और ये अरेंजमेंट करते थे, किस प्रकार जब जिस प्रकार भगवान की जरूरत है उस प्रकार अरेंजमेंट करते।
ऐसे बोलते हैं जो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टेस्टफुल अरेंजमेंट करते थे ये वृंदावन की गोपियां। तो ये है एक्सपर्ट भगवान की सेवा में। जो जितना एक्सपर्ट है वो जानते इस समय भगवान को क्या चाहिए, भगवान को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में है, जब चैतन्य महाप्रभु आखिरी 18 साल जगन्नाथपुरी में थे, जगन्नाथपुरी में थे चैतन्य महाप्रभु, उस समय चैतन्य महाप्रभु, उस समय रामानंद राय और स्वरूप दामोदर ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। और चैतन्य महाप्रभु के शरीर में अलग अलग भाव प्रकट होता था, अलग अलग राधा कृष्ण की लीला याद करते थे चैतन्य महाप्रभु। और ये स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ये दोनों चैतन्य महाप्रभु को एग्जैक्टली चैतन्य महाप्रभु के भाव समझ के उस प्रकार लीला सुनाते थे, ये उस प्रकार गीत सुनाते थे। चंडीदास विद्यापति जयदेवर गीत, ये 3 कवियों का गीत सुनाते थे रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, चैतन्य महाप्रभु। किस प्रकार जब जिस प्रकार भाव है उसके अनुसार गीत सुनाते थे, है ना। जैसे आप मंगल आरती में और कोई बोले कि ड्राम लेके और ड्राम लेके हम थोड़ा वो तेज कीर्तन करते तो मजा नहीं आएगा, उस समय संसार दबान ले सब अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार किस समय राधा कृष्ण को किस चीज की जरूरत है उस एक्सपर्टिज्म के साथ सेवा करते थे। तो ये रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, ये असल में एक प्रकार से ये सखियां थी। कौन है? रामानंद राय विशाखा देवी के अवतार और स्वरूप दामोदर ललिता देवी के अवतार। जिस प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण। इसमें भी एग्जैक्टली वही बता रहे हैं कि जा जा अलीभीर, ये इस प्रकार गोपियों वृंदावन की गोपियां हैं। इस समय याद है जब जिस प्रकार जरूरत है उसमें इस प्रकार सेवा करते हैं। तो हमें इस प्रकार भगवान की सेवा करना चाहिए कि वो किस प्रकार पसंद करते हैं। जब हम भगवान की सेवा करते हैं हमें ये देखना चाहिए कि आप जैसे किसी के लिए भोजन बनाएंगे, है ना, आपके घर पे कोई आते हैं तो भोजन जब हम किसी के लिए बनाएंगे हम देखेंगे उनका चॉइस क्या है, ऐसा नहीं कि हमारा चॉइस क्या है कि नहीं। हम क्या पसंद करते वो नहीं बनाएंगे, जिसके लिए बनाएंगे वो क्या पसंद करते हैं। तो उसी प्रकार ये वृंदावन की जो गोपियां ये जानती थी कि राधा कृष्ण को किस समय क्या अच्छा लगता है। तो अभी हम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग लेवल में, तो हम सेवा करते हैं इस प्रकार। हमें कुछ अच्छा लगता है खाने में, ये मार्केट में हमें कुछ देखने को मिला, ये सब्जी वगैरह फ्रूट्स तो कुछ खाना अच्छा लगता है तो हम वो परचेज करके लेके आते हैं और उसके बाद हम ये भगवान को भोग लगा के खाते हैं। तो हमें जो अच्छा लगता है हम भगवान को भोग चढ़ा के खाते हैं। लेकिन गोपियों के मनोभाव के नहीं, कृष्ण को रख के अच्छा लगता है वो हम परचेज करेंगे, उसके बाद वो भोग लगाएंगे। लेकिन ठीक है हम अभी उस लेवल में नहीं, एटलीस्ट भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। हम जो भी खाए बिना भोग लगा के नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये बेस्ट क्या है, भगवान को क्या अच्छा लगता है। लेकिन ऑफकोर्स ये बहुत हायर लेवल की बात है, बहुत उच्च स्तर की बात है। लेकिन ये भक्तों के इस प्रकार मनोभाव है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है। और ये अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के लिए चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, महाप्रभु इस समय क्या खाते थे, इस समय किस प्रकार भोजन करते थे, उनको किस प्रकार पोशाक पसंद है, तो ये शास्त्र में है भगवान। तो हमें इस चीज को जानना चाहिए जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां करती थी, राधा कृष्ण को कब क्या चाहिए। हम अगर किसी से अगर प्रेम करते हैं तो हम पूरा डिटेल्स पता कर लेते हैं, उस व्यक्ति को क्या चाहिए नहीं चाहिए, उनका पसंद क्या है, खाना पीने से लेकर सब कुछ। कोई अगर किसी से प्रेम करते हैं, रेस्टोरेंट ले जाते हैं ना, उनको ऑर्डर के लिए पूछना नहीं पड़ते, तो पहले से ऑर्डर दे देते क्योंकि पता है उनको वो क्या पसंद करते। लेकिन हम कितना समय बिताते राधा कृष्ण के क्या क्या पसंद है। तो कभी कभार हमें ये भी सोचना चाहिए राधा कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु क्या क्या पसंद करते, तो उनके पसंद के अनुसार हमें ये सेवा करना चाहिए। एंड देन इस प्रकार वृंदावन की जो गोपियां हैं इस प्रकार सेवा में ये एक्सपर्ट, तत्र अति दक्षात। उसी चीज में, किस चीज में, राधा कृष्ण की जो सेवा है, जो कौन सी सेवा, जो वृंदावन की गोपियां राधा कृष्ण के युगल, राधा कृष्ण की जो माधुर्य लीला रूप जो सेवा है, उस सेवा में जो इन लोग करती हैं, उस प्रकार सेवा में कौन एक्सपर्ट है? आध्यात्मिक गुरु। अभी आध्यात्मिक गुरु के बारे में बता रहे हैं। तत्र उसी चीज में
अति दक्ष, आध्यात्मिक गुरु अत्यंत दक्ष हैं और साथ में अति वल्लभ थे, बहुत ही प्रिय है। किसके प्रिय है? गोपियों के प्रिय है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक गुरु के अति दक्ष, बहुत ही एक्सपर्ट है, निपुण है, और अति वल्लभ, बहुत प्रिय है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट। जब हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं तो निपुण होना जरूरी है, एक्सपर्ट होना जरूरी है। अति दक्ष, नॉर्मल ओनली एक्सपर्ट नहीं, दक्ष नहीं, अति दक्ष, वेरी एक्सपर्ट। भौतिक संसार में हम हर एक चीज के बारे में एक्सपर्ट दिखाते हैं। जैसे भागवतम में है महाराज दक्ष के बारे में। हाँ, महाराज दक्ष भौतिक चीजों में एक्सपर्ट माना जाते हैं। एक बार 10,000 पुत्र जन्म दिया और एक बार 1,000, जो नारद मुनि उनको सन्यासी बना दिया। तो प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि हमें भौतिक चीजों में ऐसे दक्ष नहीं बनना है जिस प्रकार दक्ष महाराज, जो दुर्गा देवी के पिताजी। लेकिन हमें आध्यात्मिक भगवान की सेवा के लिए हमें ये दक्ष होना चाहिए। क्यों? अगर हमारे घर पे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते हैं, हम कितने एक्सपर्टली सेवा करेंगे उनको सेवा करने तो आसान नहीं है। एक्सपर्ट व्यक्ति की जरूरत, जो बेस्ट कुकिंग में, जो बेस्ट ड्रेसिंग में, जो हर एक चीज में बेस्ट, ऐसे व्यक्ति उनकी सेवा कर सकते हैं। तो भगवान की सेवा करने में हमें कितना एक्सपर्ट होना चाहिए। और ये वैष्णव के एक गुण है। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव के 26 गुण बताते हैं। 26 गुण में से ये एक गुण है। ये गुण क्या है? ये गुण है गंभीर करुणा मैत्र कवि दक्ष मौनी। 26 गुण में ये 24 नंबर गुण जो है, सॉरी 25 नंबर गुण है एक्चुअली, सेकंड लास्ट, ये है दक्ष है। एक भक्त का एक्सपर्ट है, भगवान की सेवा करने के लिए उनको एक्सपर्ट होना जरूरी है। प्रभुपाद ये चाहते थे कि जो हमारे संस्था के सभी भक्त एक्सपर्ट हो हर एक चीज में। देखिए भौतिक संसार में एक्सपर्ट होना बहुत ही मुश्किल है, हर एक चीज में एक्सपर्ट होना टफ है ना। अब देखिए कोई, जैसे कोई स्पोर्ट्स मैन है, कोई खेल, कोई एक्टर एक्ट्रेस है, या कोई पॉलिटिक्स में, कितने लोग अपनी, आप देखिए कितना हजारों करोड़ों में से 1-2 लोग निकल कर एक्सपर्ट बनते। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सबके लिए ये मौका है। इसमें सब लोग अति दक्ष, बहुत एक्सपर्ट बन सकते हैं। भौतिक संसार में आप चाहे तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही IAS ऑफिसर हो सकते, कलेक्टर, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब लोग टॉप मोस्ट बन सकते, सभी लोग टॉप मोस्ट बन सकते। तो अति दक्ष, तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए दक्ष बनने की, अति दक्ष। सभी ट्रांसेंडेंटल जो आध्यात्मिक गुण प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो इसलिए इस्कॉन में सभी सदस्यों को ये देखना चाहिए भगवान की सेवा के लिए हमें एक्सपर्ट होना जरूरी है। हमें सीखना चाहिए किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट बजाते, मृदंग, करताल। हमें ये सीखना चाहिए किस प्रकार भगवान के लिए हम भजन कर सकते हैं, हम भोजन बना सकते, कुकिंग सही तरीके से, हम किस प्रकार डांसिंग कर सकते हैं, हम भगवान की ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो हर एक चीज में हमें, हम सब लोग जानते हैं, ऐसे नहीं सभी भक्त लोग करते हैं, लेकिन हमें एक्सपर्ट होना है। तो ये आध्यात्मिक गुरु का गुण ये है, आध्यात्मिक गुरु इसमें अति दक्ष, बहुत ही एक्सपर्ट है। तो हम सब लोग भी एक प्रकार से प्रचार करते, इस काम में शिक्षा गुरु की भूमिका निभाते। तो इसलिए हमें भी ये हर एक चीज में एक्सपर्ट होने के प्रयास करना चाहिए। बहुत ऐसे कभी कभी देखने को मिलते, इसको में 15-20 साल हो जाते, लेकिन आप बोलते थे तो वो एक मंगल आरती गाओ, गाना नहीं आते, कोई बोलते। लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। अगर किसी को नहीं आते प्रॉब्लम है, अलग बात है, बट है ना, प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अति दक्ष, आध्यात्मिक गुरु की गुण है अति दक्ष, तो वो एक्सपर्ट है हर एक चीज में। भगवान राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए उनको एक्सपर्ट होना जरूरी है। यद्यपि ये भागवतम में ये बोलते हैं कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी सद्गुण आ जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। यस्तास्ति भक्ति भागवती अकिंचन, सभी सद्गुण है, सर्वरि गुणस्तत्र समासते सुधा, सभी सद्गुण आ जाते हैं। फिर भी हमें भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम उसमें क्या बता रहे हैं, यस्तास्ति भक्ति भागवती अकिंचन, जो अकिंचन भक्ति करते हैं। अकिंचन भक्ति मतलब अनअलर्ट डिवोशन, जो फुल मतलब कंसंट्रेशन के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, फिक्स अप होके भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे भक्त में सभी सद्गुण आ जाते हैं ऑटोमेटिकली।
ये चूंकि हम उस प्रकार भक्ति नहीं करते तो हमें अलग से ये प्रयास करना चाहिए इस प्रकार सद्गुण बढ़ाने की, जो जिसके द्वारा हम एक्सपर्ट बन सकते हैं और हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं क्या क्या एटलीस्ट अलग बहुत से गुण हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 26 क्वालिटीज होना चाहिए, ये जरूरी है ये सद्गुण। तो हम भगवान का एक्सपर्टली सेवा कर सकते हैं जिस प्रकार आध्यात्मिक गुरु ये सेवा करते हैं। तो अति दक्षत और अति बल्लभस्य, ये अति बल्लभ, देखिए दक्ष अति दक्षत ये काफी इंपॉर्टेंट है। भक्तों को एक्चुअली कोशिश करना चाहिए हर एक चीज में दक्ष बनने के लिए, ऑलराउंडर बनने के लिए। देखिए हम कृष्ण भक्त में कितना एस्पेक्ट है, आप कुकिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, भगवान को ड्रेसिंग कर सकते हैं, और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टेम्पल डेकोरेशन कर सकते हैं। तो हमें हर एक चीज सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कभी कभार भक्ति जब हम करते हैं किसी एक चीज बहुत साल तक किसी एक सेवा करते करते कभी कभार हम बोरिंग हो जाते, तो इसमें और रुचि नहीं लगती, ये बहुत दिन से कर रहा है। लेकिन अगर हम हर एक चीज में एक्सपर्ट हो जाते, चलो अभी हमें अच्छा नहीं लग रहा प्रवचन सुनना, हम बहुत दिन लेक्चर सुन रहे, चलो हम भजन कीर्तन कर सकते भगवान की प्रसन्नता के लिए। कभी हो सकते हैं हम भगवान के लिए हम कुकिंग जानते अच्छे से, तो खास करके जो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण पसंद करते हैं ऐसे कुछ नया आइटम हम बना सकते भगवान के लिए। अभी हो सकता है हम सिंगिंग में अच्छे नहीं लग रहे भजन करने में, कभी हो सकता है हम कुकिंग करने में अच्छा नहीं लग रहा, हम ड्रेसिंग जानते किस प्रकार भगवान की ड्रेसिंग कर सकते। तो इसीलिए अति दक्षा काफी इंपॉर्टेंट है, हमें हर एक चीज में दक्षा बनने की प्रयास करना चाहिए, ताकि जब हमें मूड ऑफ रहते हैं, हम कभी बोरिंग हो जाते किसी एक चीजों में, तब हम अन्य सेवा के द्वारा भगवान की सेवा में एंगेज रहते। और साथ में क्या है, अति वल्लभ है, आध्यात्मिक गुरु उनको बहुत ही प्रिय है। और ये अति दक्ष जो है, अति दक्ष किसमें, जो प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में, अति दक्ष मतलब क्या है, राधा कृष्ण की सेवा में। ये कौन असल में दक्ष है, प्रभुपाद लिखते हैं असल में श्रीमती राधा रानी दक्ष है। तो वृंदावन की जो गोपियां हैं वो लोग किस प्रकार सेवा करती हैं, वो लोग राधा रानी को, राधा रानी जब अलग रहती है अलग जगह में, तो उन लोग को धक्का लगा के कृष्ण के पास पहुंचाती, पुश करती। तो वृंदावन की जो गोपियां हैं ये राधा और कृष्ण को एक साथ में देखना चाहती है। और राधा रानी का मोड क्या है, राधा रानी का मोड ये है, राधा रानी बाकी अन्य गोपियों को कृष्ण के साथ देखना चाहती है। ये जो झूलन यात्रा लीला में आते हैं, स्विंगिंग फर्स्ट टाइम झूलन यात्रा लीला में आते हैं कि कृष्ण चाहते हैं राधा रानी के साथ झूलने के लिए, लेकिन राधा रानी झूला से उतर के राधा रानी अन्य गोपियों को कृष्ण के साथ बैठा के बोलते हैं हम आप ऐसे देखना चाहते हैं। तो हर एक गोपियों को राधा रानी कृष्ण के साथ बैठाते और दूर से देखते राधा रानी को प्रसन्नता मिलती। तो इसलिए राधा रानी का जो कैरेक्टर, राधा रानी नॉन एम्बियस है, और राधा रानी ये चाहती है कि सबको, दुनिया में सबको भगवान कृष्ण के सेवा में लगाने के लिए, इसलिए भगवान कृष्ण के इतने प्रिय है। तो बोलते राधा रानी को ही क्यों भगवान कृष्ण हमेशा साथ में रखते, क्योंकि राधा रानी सभी जीव को, सभी को भगवान कृष्ण के साथ ही देखना चाहते। कृष्ण राधा रानी को साथ में देखना चाहते, लेकिन राधा रानी सबको कृष्ण के साथ देखना चाहते हैं। लेकिन क्या हम इस प्रकार चाहते हैं? हम अगर किसी को देखते हैं कि कृष्ण के साथ, जैसे जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी प्रोग्राम फेस्टिवल के समय मंदिर में आरती कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, हमें लगता है हम क्यों नहीं कृष्ण के साथ, वो क्यों आरती कर रहे हैं, कैमरा में लाइव ब्रॉडकास्टिंग में सब में उनका फोटो जाएगा। लेकिन राधा रानी का मतलब है हम नहीं देखना चाहते हमें अपने आप को, हम चाहते हैं कि बाकी लोग कृष्ण के साथ रहें, ये मनोभाव है। हम राधाष्टमी में प्रवचन दे रहे हैं, हम बोलेंगे चलो ये राधाष्टमी प्रवचन ये क्यों दे रहे हैं, प्रवचन देना मतलब राधा रानी के बहुत क्लोजली रहना। तो इसे ये अंतर है राधा रानी की जो मनोभाव है और बहुत ही संसार में बाकी सबके मनोभाव है। तो इसलिए राधा रानी की जो मनोभाव है ये सबसे श्रेष्ठ, भक्ति में श्रेष्ठ है। अनया राधिता नुनाम, भागवतम में लिखते हैं कि आराधना में जो सबसे श्रेष्ठ है वो है श्रीमती राधा रानी। और उनके जो प्रेम या भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति ये इनकम्पेरेबल, मतलब कोई कंपेयर नहीं कर सकते राधा रानी की जो भक्ति। और उसी मनोभाव के साथ वृंदावन की गोपियां राधा कृष्ण की सेवा करती है, और उसमें आध्यात्मिक गुरु उसमें एक्सपर्ट निपुण है। और अति वल्लभस्य,
और साथ ही साथ ये बहुत ही प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि अति वल्लभ से क्यों प्रिय है? क्योंकि वो एक्सपर्ट है, अति दक्ष। जब हम भगवान की सेवा एक्सपर्टिज्म के साथ, दक्षता के साथ करेंगे, तभी हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। और वंदे गुरोश्री चरणारविंदम, ऐसे आध्यात्मिक गुरु की हम चरण वंदना करते हैं। तो निकुंज यून रति के लिए सिद्धई, जो राधा कृष्ण की कुंज में रति, जो कंजुगल लाभ, प्रेम और लीला करते केली, और ये प्रेम और लीला केली को संपन्न करने के लिए जो जो जरूरत होता है, जब अली भी वृंदावन की गोपियां वो हर एक चीज की अरेंजमेंट करते जो भगवान की इच्छा के अनुसार, और उसी चीज में कौन, इन दैट कनेक्शन आध्यात्मिक गुरु जो है बहुत ही निपुण है, अति वल्लभ से, इसलिए वो बहुत प्रिय है गोपियों के और राधा कृष्ण के। वंदे गुरोश्री चरणारविंदम, तो मैं इस पर ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरण वंदना करता हूँ, जो ऐसे एक्सपर्ट राधा कृष्ण की सेवा में गोपियों जैसे, और साथ में राधा कृष्ण के बहुत प्रिय है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Both these verses, 5th and 6th, are little esoteric, but आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, and we are very grateful to hear more and more about the special position of spiritual master in Radha Krishna's pastimes. So, like I said last time also, that we are very fortunate to hear all this from Rasanand Prabhu, और बिल्कुल हमारे लेवल पे ठीक करके, but still he gave us some you can say trailers of little leelas we discussed last time, and this time also we heard little bits how, and also about Chaitanya Mahaprabhu. We hear again and again so many lectures. We hear how Radha Krishna's pastime cannot be understood without going through Sri Chaitanya Mahaprabhu. And those devotees like Rasanand Prabhu, who is carrying Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet in their heart. So we'll loudly chant one Hare Krishna Mahamantra to thank His Grace Rasanand Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. His Grace Rasanand Prabhu ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Thank you so much, Prabhuji. So there are a few questions, I think. Questions? Few devotees have their hands raised. Who is raised the hand? I think Shama Mataji is there and Shwani. Yes. Rasanand Prabhu, can you take one of the questions? Yes. Yes. Kanta Radhika Mataji, please go ahead. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Thanks so much for such beautiful explanation. Prabhuji, very quickly, just wanted to confirm a few things. You said Yugal Puja was started by a particular Goswami. Who was that? Madhavendra Puri. Madhavendra Puri, okay. And three favorite poets of Mahaprabhu that you said are Vidyapati, Jaydev Prabhu, and Chandidas ji, right? Vidyapati, Jaydev, Chandidas. Okay. And another thing, so we said Radharani is of course non-jealous and she's offering the devotees to Krishna. But then the Leela for Virja Gopi, was that whole episode of jealousy only for the sake of Leela, or was there actual element of jealousy? Which Braja Gopi Leela you are saying? Virja Gopi Okay, Biraja, Leela. in spiritual world. Yeah, Biraja. Yeah, Viraja. Virja Spiritual Leela. world. Yeah. Yeah, that is not actually, it's not jealousy. It's called Abhiman, you know. राधा कृष्ण की जो लीला है, मतलब कृष्ण के साथ जो लीला है, इस लीला को और ज्यादा क्या बोलते, मधुर करने के लिए इस प्रकार राधा रानी कभी कभार करते। जैसे एक बार राधा रानी कुंज में, राधा रानी ललिता विशाखा देवी के साथ ऐसे कृष्ण के लिए इंतजार कर रहे थे, और उस समय कृष्ण जब आ रहे थे बीच रास्ते से, चंद्रावली कृष्ण को लेके गए। चंद्रावली है राधा रानी के राइवल वृंदावन में। तो राधा रानी मतलब इस प्रकार शाम तक वेट करते करते कृष्ण नहीं आए, तो कृष्ण बाद में शाम को आए,
कुंज में मिलने के लिए, और राधा रानी बहुत गुस्सा हो गए, बहुत नाराज हो गए कि इनको हम आने नहीं देंगे कुंज में। ललिता देवी गार्ड थी, ललिता देवी कृष्ण को प्रवेश करने के लिए बिल्कुल नहीं दिया। तो ये इस प्रकार जो है ये एक्चुअली जेलसी नहीं है। भौतिक संसार में ये जेलसी हो सकते हैं, लेकिन राधा रानी के मनोभाव इस प्रकार नहीं है। लेकिन ये प्रेम को और गहरा करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए, क्योंकि सेपरेशन में प्रेम और इंटेंस हो जाता है जब हम किसी से अलग रहते हैं। इसको बोलते हैं विप्रलंब भाव। और ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये इस कलि युग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते हैं कि विप्रलंब भाव के जो राधा रानी के भाव जो हम शिक्षाष्टकम के 8 नंबर श्लोक में पढ़ते हैं, अश्लील पादरकम, है ना। ये नेक्टर ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु में और उपदेशामृत में भी प्रभुपाद थोड़ा थोड़ा लिखते हैं इसके बारे में। तो विप्रलंब भाव मतलब क्या है, जब सेपरेशन में प्रेम और इंटेंसिव है। तो कभी कभी राधा रानी ऐसे गुस्सा करती थी ताकि वो कृष्ण दूर रहे, तो सेपरेशन में राधा रानी की प्रेम और ज्यादा बढ़ जाती थी। तब उसके बाद क्या हुआ, कृष्ण मिल नहीं पाया राधा रानी से, और उसके बाद कृष्ण चले जाते यमुना के किनारा में, और कृष्ण को बहुत दुख लगते, कृष्ण रोने लगते यमुना के किनारा में। तो ये अगर राधा रानी नहीं माना करती थी तो इस प्रकार की जो कृष्ण जो फील कर रहे राधा रानी के लिए, राधा रानी जो फील कर रहे वो नहीं होता। एंड देन आफ्टर कृष्ण कुछ प्लान किया, चलो हमें कहते हैं मिलना है। तब कृष्णा एक सन्यासी के वेश लेकर जाते हैं, साधु, और राधा रानी की कुंज के सामने जाके भिक्षांग दही बोलते हैं। और उसमें ललिता देवी सामने आती है और कुछ भिक्षा लेकर आते हैं। और ललिता देवी जब भिक्षा देते हैं तो ललिता कृष्ण बोलते नहीं, हम किसी गार्ड से नहीं लेते भिक्षा, जो घर वाली जो है उनसे भिक्षा लेंगे। तो राधा रानी बाहर आती है बहुत दुखी, क्योंकि कृष्ण से मिल नहीं पाए पूरा दिन। तो उसके बाद राधा रानी को देख के कृष्ण सन्यासी के रूप में कृष्ण कहते हैं ललिता देवी से कि ऐसे लग रहे तुम्हारी जो सखी है उनमें बहुत दुखी है। मैं एक्चुअली सन्यासी के साथ ज्योतिष भी हूँ, मैं हाथ दे के बता सकता हूँ इनका दुख खत्म होगा। तो राधा रानी हाथ आगे कर देती है, तो कृष्ण जैसे सन्यासी के रूप में राधा रानी के हाथ स्पर्श करते, तुरंत राधा रानी को समझ में आ जाती है। तो कृष्ण बोले चल लंपट, तुम सन्यासी के रूप में आए, तो ये अभिमान खत्म हो जाते। लेकिन बाद में राधा रानी बोलती इतना सुंदर रूप सन्यासी के रूप में तुम्हें और सुंदर लग रहा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि कलयुग में तुम सन्यासी के रूप में लीला करो। इसलिए कलयुग में कृष्ण सन्यासी के रूप में आते हैं, और वो कौन है, चैतन्य महाप्रभु। तो वो असल में सन्यासी कौन है, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में जब थे सन्यासी के रूप में, वो कृष्ण राधा रानी के रूप, राधा भाव, राधा रानी के भाव में कृष्ण की सेपरेशन फील करे, इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रोते थे वृंदावन में, सॉरी जगन्नाथपुरी में, जिस प्रकार कृष्ण इसमें रो रहे थे। तो ये विप्रलंब भाव है, इसमें ये जलस नहीं, ये प्रेम को इंटेंसिफाई करने के लिए और ज्यादा इस प्रकार लीला करते। Thank you, Prabhuji. Yes, Shivani Mataji, go ahead. Prabhuji, confused Shila Prabhupada. Prabhuji, I have one question. जब हम कहते हैं that Shila spiritual master is expert in what, like in helping the gopis in arrangement. Yes, So, yes. So, we are saying spiritual master is servant, is the servant of gopis. Is that? हाँ, डेफिनेटली। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि गोपी भट्ट पद कमल और दास दास, कि हम गोपियों के दासों के दास बनना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु गोपियों के बहुत ही क्लोज, जैसे भक्त सिद्धांत ठाकुर, भक्त विनोद ठाकुर, उन लोग जब थे, ये लोग अपना स्वरूप बता के गए कि हम वृंदावन में कौन मंजूरी है, ये मंजूरी है। जैसे रूप गोस्वामी सनातन का रूप मंजूरी, ये मंजूरी मतलब जो राधा रानी के एक्सपेंशन है, ये सखी है, और जो गोपियां हैं उनके, और जो असिस्टेंट मतलब राधा रानी के असिस्टेंट सखियां हैं, और सखियां के जो असिस्टेंट वो मंजूरी है। तो उन लोग बता के वो लोग कौन से मंजूरी थी, लेकिन बहुत से आचार्य लोग बताते भी नहीं है। तो आध्यात्मिक गुरु विनम्रता की वजह से अपना स्वरूप नहीं बताते, उनका जो रियल पोजीशन है वृंदावन में। तो ये गोपियों को हेल्प करते इस प्रकार राधा कृष्ण की सेवा में। Okay, thank you so much.
Thank you, Prabhuji. Yes. Hare Krishna. Thank you. Thank you so very much, Prabhu. So one more Hare Krishna Mahamantra for Prabhuji. Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grace Saran Prabhu ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Gautamanande. Hare Hare. Hare Krishna. So thank you so very much, everyone, for coming. And these are the 5th and 6th are little esoteric verses. So by the grace of Rasaran Prabhu, we got some mercy. So thank you so very much. Hare Krishna. All glory to Prabhupada. Thanks so much, Prabhuji. Dandavat Pranam. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna.